Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I'm going to describe a chapter which is taken from your Moments book. This one is a supplementary reader book in English for class 9th student. Name of the chapter is The Happy Prince, which is written by Oscar Wilde. So this story is whole about a prince and a bird, where we will find an emotional attachment and the kindness of prince as well as the bird. The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold, he had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So this one is an introduction about the story that there was a beautiful statue of happy prince and that was covered with gold. As you can find in this image, even two bright sapphires was placed in his eyes and one ruby was placed in his sword. Then after, why he donated, why he gave all those golds, even his precious stones in between the people, in between the mass. So let's try to understand the story by which we are able to understand this question. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. So gilded means to be covered with something, किसी चीज से ढका होना. Sapphires, a special stone which is in blue color. Ruby is also a precious stone which is in red color. Sword hilt means the handle of a weapon or tool. किसी भी तलवार या चाकू के ऊपर वाले भाग को, हैंडल के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? हिल्ट कहते हैं. तो शहर के सबसे ऊंचे भाग में एक बहुत बड़ा कॉलम, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था. यह पूरी तरह से सोने से कवर था. आंखों में दो चमकीले सफायर्स लगे हुए थे और तलवार के हिल्ट पर एक बड़ा सा रेड रूबी लगा हुआ था. सो दिस वन इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैच्यू. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर से उड़ रही थी. उसके सभी दोस्त इजिप्ट 6 वीक्स पहले चले गए थे. इजिप्ट इज अ नेम ऑफ कंट्री विच इज इन अफ्रीका. अफ्रीका के एक देश का नाम है. लेकिन वह पीछे रुक गया था और अब वह भी डिसाइड कर रहा है कि वह भी इजिप्ट जाएगा. All day long he flew and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. Then he saw the statue on the tall column. यह पूरे दिन उड़ता रहा और रात में यह शहर पहुंचा. Where shall I put up means अब यह कहाँ रहेगा. यह कहता है और यह उम्मीद कर रहा है कि शायद मेरे लिए शहर ने तैयारियां की होगी. और तभी यह एक बड़ा सा कॉलम दिखता है स्टैच्यू का. I will put up there, he cried. वह कहता है कि मैं वहां रुकूंगा. It's a fine position with plenty of fresh air. यह एक अच्छा जगह है जहां पर बहुत सारी ताजी हवा, फ्रेश एयर मिलेगी. So he alighted just between the feet of the happy prince. Alighted का अर्थ होता है to get off, descended, रुक जाना. और इसलिए वह क्या किया? हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाकर रुक गया. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. अब यह खुद से कहता है कि मेरे पास गोल्डन बेडरूम है. ऐसा वो क्यों कह रहा है? बिकॉज द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वॉज इन गोल्ड. क्योंकि प्रिंस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू था वह क्या था? गोल्ड का बना हुआ था.
और वह देखता है और अब वह सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। और जैसे ही वह अपना सर पंख के नीचे रखता है, एक बड़ी सी पानी की बूंद ऊपर से गिरती है, उसके ऊपर में गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, यह क्या अजीब चीज है। ही क्राइड, वह कहता है, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। वह यह कह रहा है कि आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे बिल्कुल चमक रहे हैं, क्वाइट क्लियर हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और तभी दूसरी बूंद भी गिरती है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। वह कहता है, इस स्टैच्यू का यूज क्या है अगर यह पानी की बूंदों को, पानी को नहीं रोक सकता है। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, और वह सोचता है कि मुझे एक अच्छा सा चिमनी पॉट देखना चाहिए था। चिमनी पॉट किसे कहते हैं, जो कि आप घर के बाहर जहां से धुएं निकलते हैं किचन के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिमनी पॉट कहते हैं। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और अब वह क्या डिटरमाइन कर रहा है, जो मुझे यहां से उड़ जाना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी। और जैसे ही वह अपना पंख खोलता है, उससे पहले एक तीसरी बूंद भी आकर गिरती है, और वह ऊपर देखता है, और ऊपर देखने के बाद वह क्या देखता है, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और जैसा ही स्वैलो ऊपर की ओर देखता है, तो वो क्या देख रहा है कि हैप्पी प्रिंस का जो आंख है वह आंसुओं से भरा पड़ा है, और वो आंसू जो हैं वही उसके गोल्डन चिक्स से होते हुए नीचे गिर रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। पिटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस दैट यू हैव फॉर समवन व्हेन ही इज इन ट्रबल। दया आना, जब कोई भी किसी भी खराब परिस्थिति में रहता है, दुखी रहता है, तो आप भी दुखी हो जाते हो, उसे हम लोग पिटी कहते हैं। उसका चेहरा जो था, हैप्पी प्रिंस का चेहरा, वो मूनलाइट में बहुत ही खूबसूरत था, और उसको देखकर स्वैलो का भी दिल जो है वह क्या हुआ, दया से भर गया। हु आर यू, ही सेड। यहां पर स्वैलो पूछता है, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूं। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अब यहां पे फिर से स्वैलो पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो, और तुमने मुझे क्या किया। ड्रेंच्ड का अर्थ क्या होता है, टू मेक समबडी और समथिंग कंप्लीटली वेट, पूरी तरह भिंगा देना। तुम मुझे पूरी तरह भिंगा दिए हो। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. यहाँ पर हैप्पी प्रिंस डिक्टेटेड अबाउट हिज ओन हिस्ट्री, ऑन पास्ट। जब मैं जिंदा था और इंसानी दिल था, मीन्स सच काइंड्स ऑफ हार्ट विच बिप्ड, जो धड़कता था। मैं आंसुओं के बारे में जानता नहीं था। मैं जहां रहता था, जिस पैलेस में रहता था, वहां दुख इंटर भी नहीं हो सकता था। दुख इंटर नहीं होने का मतलब है चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेरे कोर्टियर्स मीन्स जो यहाँ पे काम करने वाले थे, वो मुझे द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, और मैं सचमुच में खुश था। मैं खुशी में ही जिंदा रहा था और मर भी गया था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। और अब ये बता रहे हैं, और जब मैं मर गया तो मुझे इतना ऊंचा, इतना ऊपर मुझे बना दिया गया है, स्टैचू ऐसा बना दिया गया है कि मैं शहर का अग्लीनेस, क्रूपता, और मिजरी मीन्स सैडनेस, सैडनेस ड्यू टू
हंगर, ड्यू टू मनी एंड सो ऑन। बहुत सारी रीजन है दुख होने के, वो सारी चीज मैं अपने शहर का देख पा रहा हूं। यहां तक कि मेरा दिल क्या है, लेड का बना है। लेड मीन्स शीशा, यह एक मेटल है। यह मेटल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ रो रहा हूं। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. और swallow अपने आप से कहता है, क्या यह सोने का नहीं बना हुआ है? Here swallow was surprised because when he entered in the city, he found that the statue of Happy Prince was made up of complete gold. But as he dictated that his heart was made up of lead, so he was surprised. Here swallow was surprised. He was too polite to make any personal remarks. लेकिन यहाँ पे यह क्या था, swallow बहुत ही पोलाइट था और उसने अपना कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं दिया। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn. She has coarse red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. और यहाँ पर स्टैचू अपनी कहानी को कंटिन्यू कर रहा है, लो म्यूजिकल वॉइस में कर रहा है। दूर, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है, एक खिड़की उसका खुला हुआ है और मैं देख सकता हूं एक औरत टेबल पर बैठी हुई है। उसका चेहरा क्या है, कमजोर है और थकी हुई है। वर्ण का अर्थ होता है थका होना। उसके हाथ क्या है, लाल है, रफ है। कोर्स का अर्थ होता है नॉट स्मूथ, रफ। और उस ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सुई क्या हो रही है, बार बार चुभ जा रही है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, क्योंकि सुई जब बार बार उंगलियों में चुभते हैं तो उससे खून निकलता है और हाथ क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। दैट्स वाई हियर रेड हैंड्स इज यूज्ड। हाथ उसके क्या है, लाल है। वह क्या है, एक सीमेस्ट्रेस है, वह सिलाई करने वाली है। शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन ग्राउंड फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और क्वीन की जो मेड ऑफ ऑनर होती है, जो क्वीन के साथ साथ कोर्ट बॉल में चलती है, उनके गाउन पे क्या कर रही है, फ्लावर को डेकोरेट कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज क्राइंग। यहां हैप्पी प्रिंस उस घर के अंदर की कहानी बता रहा है कि उस घर के एक कोने में एक बेड पर वह छोटा सा लड़का बीमार लेटा हुआ है। वह बुखार में है और वह अपनी माँ से ऑरेंजेज मांग रहा है। उसकी माँ को उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नदी के पानी के, इसलिए वह रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। फास्टेंड का अर्थ होता है जाम करना, चिपका हुआ। तो यहां पे आप जानते होंगे जो पेडेस्टल के ऊपर में स्टैचू लगा हुआ रहता है तो उसको टाइट किया जाता है। तो यह यहां पर हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट कर रहा है स्वैलो से, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे तलवार के हिल्ट में से रूबी निकालकर उसे नहीं दे दोगे? मेरा पैर पेडेस्टल से चिपका हुआ है, जाम है और मैं मूव नहीं कर सकता हूं। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. अब यहां पर स्वैलो कह रहा है, मैं इजिप्ट जाने का इंतजार कर रहा हूं। मीन्स यहां पे उसके दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं इजिप्ट में। मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, नाइल के ऊपर और नीचे उड़ रहे हैं और वे बड़े से लोटस फ्लावर से बातचीत कर रहे हैं। सुन दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वे लोग सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, he said.
और यहाँ पर हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है एक रात तुम मेरे लिए यहाँ रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ। वह लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। और यहाँ पर स्वेलो जवाब देता है मुझे नहीं लगता मुझे लड़का पसंद है, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। इट इज वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब यहां पर हैप्पी प्रिंस बहुत ज्यादा उदास हो गया था और उसको देखकर लिटिल स्वेलो भी सॉरी फील कर रहा था। फिर स्वेलो कहता है यहां बहुत ठंड है, लेकिन वह एक रात रुकने को तैयार हो जाता है और प्रिंस का मैसेंजर बनने को भी तैयार हो गया है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। और प्रिंस कहता है थैंक यू लिटिल स्वेलो। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. और अब लास्ट में क्या हुआ, स्वेलो ने प्रिंसेस के स्वॉर्ड में से रूबी को निकाल लिया और अपने बीक में लेके शहर के ऊपर से चला गया, मीन्स उड़ गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. और कैथेड्रल किसे कहा जाता है, अ लार्ज चर्च। और वो क्या किया, अब लार्ज चर्च के ऊपर से कैथेड्रल टावर के ऊपर से चला गया, जहां पर उसने क्या देखा, व्हाइट मार्बल एंजल्स सब स्कल्पचर्ड थे, लगे हुए थे। वह एक पैलेस को भी क्रॉस कर रहा था जहां पे उसने डांसिंग की आवाज भी सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। एक खूबसूरत लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ बाहर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सेड। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सेमेस्ट्रेस आर सो लेजी। अब यहां पर जो वो लड़की अपने लवर के साथ बाहर निकली हुई थी, इट मे बी सी वॉज मेड ऑफ क्वीन। वह कह रही है उसे कि मैं उम्मीद करती हूं कि मेरा ड्रेस जो है वो स्टेट बॉल जाने के समय में क्या हो जाए, तैयार हो जाएगा। वह कहती है मैंने अपने ड्रेस पर, वो जो गाउन दिया गया था उस पर उसने फ्लावर्स डिजाइन करने का ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन सेमेस्ट्रेस क्या है, बहुत लेजी है, बहुत आलसी है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. अब स्वेलो नदी को क्रॉस कर रहा होता है और वो क्या देखता है, लालटेंस हैंग हुए हैं मास्ट ऑफ द शिप पर। मास्ट इसे कहा जाता है जिसके सहारे बोट या शिप क्या होती है, टर्न करती है। और अंत में वह पुअर वुमेन के घर में सेमेस्ट्रेस के घर पहुंच जाता है और देखता है कि लड़का जो है वो फीवर के कारण लेफ्ट और राइट बेड पर टर्न कर रहा है। उसकी माँ भी सो गई है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही होप एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड्स द वुमेन्स थिम्बल। थिम्बल कहा जाता है ए स्मॉल मेटल और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट दैट यू वियर ऑन द एंड ऑफ योर फिंगर टू प्रोटेक्ट। यह होता है एक मेटल और प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट होता है जो कि उंगलियों में पहना जाता है, जिसके सारे हम लोग नीडल्स जो होते हैं, जो स्विमिंग के समय में नीडल्स का यूज किया जाता है, उससे मेरा उंगली या किसी का फिंगर सुरक्षित रह सके। तो उसने क्या किया, ग्रेट रूबी को टेबल पर ही जहां पे वुमेन्स का थिम्बल रखा हुआ था ठीक उसके बगल में उसको रख दिया। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. Slumber means sleep. अब यह स्वेलो क्या करता है, बेड के पास चला जाता है और लड़के के सर के पास अपना पंख हिलाता है। और लड़का क्या कहता है, हाउ कूल आई फील, कितना ठंडक मैं महसूस कर रहा हूं, मैं क्या हो रहा हूं, अच्छा हो रहा हूं। और वह अब क्या चला जाता है, एक अच्छी नींद में चला जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और अब स्वेलो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस के पास वापस चला जाता है और जो कुछ किया रहता है वो बताता है।
It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. Curious का अर्थ होता है strange. और अब ये क्या कहता है swallow? यह बहुत ही अजीब है, लेकिन मैं क्वाइट वार्म फील कर रहा हूं, गर्म महसूस कर रहा हूं, जबकि क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है. That is because you have done a good action, said the prince. और प्रिंस कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम वार्म महसूस करो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है. एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और swallow क्या करता है, सोचना स्टार्ट कर देता है और उसके कारण क्या होती है, उसको नींद आ जाती है. और सोचता जब भी है swallow, वो कैसा महसूस करता है, वो हमेशा स्लीपी महसूस करने लगता है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. Prospect का अर्थ होता है thought of something, विचार. और अब क्या करता है, जैसे ही अगला दिन होता है, swallow रिवर में नहाने चला जाता है, बाथ लेता है, और वह कहता है आज शाम मुझे इजिप्ट जाना है. और यह विचार करके ही यह बहुत ज़्यादा खुश रहता है. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple का अर्थ होता है हाई टावर ऑफ ए चर्च, सबसे ऊंचा जगह. और वह सारी बिल्डिंग्स को घूमता है और अंत में जाकर यह चर्च के स्टीपल पे जाके बैठ जाता है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. और जैसे ही मून निकलता है, रोज इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज. और जैसे ही मून निकलता है, हैप्पी प्रिंस के पास वापस swallow फिर से चला जाता है और कहता है इजिप्ट में क्या कोई काम है, मैं अब जा रहा हूं. swallow swallow little swallow, said the prince, will you stay with me one night longer? अब फिर से हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है, swallow swallow little swallow, क्या एक रात और तुम रुकोगी? I am waited for in Egypt, answered the swallow. और swallow फिर से क्या जवाब देता है, इजिप्ट में मेरा इंतजार हो रहा है. Swallow swallow little swallow, said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. garret का अर्थ क्या होता है, a small dark room at the top of the house. घर के ऊपर एक छोटा अंधेरा कमरा. और यहां पर प्रिंस सेकेंड रिक्वेस्ट, सेकेंड वर्ड बता रहा है swallow को. swallow swallow little swallow, बहुत दूर शहर के पार एक यंग आदमी, एक यंग मैन एक छोटे अंधेरे कमरे में है. ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायोलेट्स. विदर्ड का अर्थ क्या होता है, वर्न आउट, खराब. वायोलेट्स क्या हुआ, फूल, एक तरह का फूल है ये. और वो क्या कर रहा है, वह डेस्क जो है इसके पास, वह डेस्क के ऊपर में है और डेस्क पूरा पेपर से भरा पड़ा है, कवर्ड है. और बगल में जो ग्लास है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, बगल में जो ग्लास है यहां पर फूल पड़े हुए हैं जो सूखे हुए हैं. मीन्स बहुत दिन से साफ सफाई भी नहीं हुआ है. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमीग्रेनेट एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आइज. पोमीग्रेनेट क्या हुआ, पोमीग्रेनेट इज अ फ्रूट. इन हिंदी दिस वन इज नोन एज अनार. और यहां पे अब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है इस यंग मैन का. उसके बाल क्या हैं, ब्राउन हैं और सूखे हुए हैं. उसके होंठ अनार की तरह लाल हैं और उसकी आंखें बड़ी है और ड्रीमी है. मीन्स यह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है. ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. देर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. ग्रेट का अर्थ क्या होता है, फायर प्लेस. अब यहां पर क्या हुआ, वह कोशिश कर रहा है प्ले लिखने की. यह एक राइटर है, इसलिए वह कोशिश क्या कर रहा है, एक प्ले लिखने की, उसको खत्म करने की, जो कि इसको डायरेक्टर ऑफ थिएटर को देना है. लेकिन यह बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा है जिसके कारण ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा है. और उसके फायर प्लेस में आग भी नहीं है. और भूख के कारण क्या हुआ, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा है. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. Playwright is a person, young playwright is a person
हु राइट्स अ स्टोरी। अब यहां पर स्वैलो भी तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है मैं एक रात और इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि स्वैलो का भी दिल क्या था, बहुत ही अच्छा था। और वह कहता है अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रूबी है तो वो दे दो, तो मैं प्ले राइट को दे दूं। Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. अब यहाँ पर प्रिंस अफसोस मनाते हुए कहता है आह मेरे पास रूबी अब नहीं है, मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास बची हुई हैं, और वे रेयर सफायर से बने हुए हैं जो कि इंडिया से हजारों साल पहले लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. और वह कहता है आज्ञा देते हुए, ऑर्डर देते हुए कहता है स्वैलो को कि वह उनमें से एक को रिमूव कर ले, प्लक आउट कर ले और प्ले राइट को दे दे। प्ले राइट उस यंग मैन को दे दिया जाए। वह क्या करेगा, इसे ज्वेलर के हाथों बेच देगा। उससे जो पैसे आएंगे उसे वो क्या करेगा, फायरवुड खरीद लेगा, लकड़ी खरीद लेगा, आग जलाने वाली लकड़ी, और उसके बाद वो क्या करेगा, अपना स्टोरी कंप्लीट कर सकता है। वो अपनी स्टोरी को लिख लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगेन टू वीप। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वीप का अर्थ क्या होता है, क्राई, रोना। और अब क्या होता है, स्वैलो कहता है डियर प्रिंस मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और इसी के साथ स्वैलो भी क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। और प्रिंस कहता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। सो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेज आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। गैरेट क्या हुआ, रूफ ऑफ अ हाउस। अब स्वैलो क्या करता है, प्रिंस की एक आंख प्लक आउट कर लेता है और यंग मैन्स के गैरेट के लिए उड़ जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। यह बहुत ही आसान था अंदर जाना, क्योंकि छत में क्या था, एक होल बना हुआ था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायोलेट्स। डार्टेड का अर्थ क्या होता है, पुश्ड हिमसेल्फ इनसाइड, अपने आप को अंदर की ओर धक्का देना। और इसके लिए क्या करता है, चिड़िया उस होल से अपने आप को अंदर लाती है और रूम में चली आती है। और यंग मैन क्या रहता है, अपने हाथों को अपने सर पर रख के बैठा रहता है, जिसके कारण वह चिड़िया के जो विंग्स हैं उसके फरफराने की आवाज़ नहीं सुन पाता है। और जब यह ऊपर देखता है तो देखता क्या है, उस विदर्ड वायोलेट्स, जो वहां पे फूल, सूखे हुए फूल थे, वहां पर ब्यूटीफुल सफायर्स उसको मिले। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और वह कहता है कि मुझे शायद किसी ने शुरू में ही अप्रिसिएट किया जा रहा है। यह क्या है, मेरे किसी अपने जो सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं उसकी तरफ से दिया जा रहा है, और अब मैं अपना प्ले खत्म कर सकता हूं। और वह अब बहुत ही खुश महसूस कर रहा है। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वैलो, बट नो बडी माइंडेड, एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और अगले दिन स्वैलो हार्बर के पास चला जाता है। हार्बर क्या होता है, सी पोर्ट होता है। और वहां पर वो एक लार्ज वेसल के ऊपर में बैठ जाता है, और सभी सेलर जो जहाज में, शिप में काम करते हैं उसे सेलर्स कहा जाता है। और वह सभी सेलर्स के काम करने को देख रहा था, और वह कहता है मैं अब इजिप्ट जा रहा हूं। और जैसे ही मून राइज होता है वह फिर से वापस हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। और यहां पर स्वैलो कहती है मैं यहां तुमको गुड बाय कहने आई हूं। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस,
विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर? अब यहां पर फिर से प्रिंस रिक्वेस्ट करता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और ज्यादा नहीं रुक सकोगी? इट इज विंटर, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब यहाँ पे swallow कह रहा है, यहाँ ठंड है और बहुत जल्दी यहाँ पर क्या होगा, स्नो भी आ जाएगा। और इजिप्ट में क्या है, सूरज बहुत गर्म है, सन क्या है, वार्म है, और पाम ट्री भी ग्रीन है, और क्रोकोडाइल भी कीचड़ में लेजीली लेटे हुए रहते हैं। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. और यहाँ हैप्पी प्रिंस तीसरा रिक्वेस्ट, तीसरा वर्क यहाँ कर रहा है कि स्क्वायर बिलो के पास एक छोटी मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल किसे कहा जाता है? दोज हु सेल्स द मैच बॉक्स। तो ये छोटी लड़की जो मैच बॉक्स बेचती है, उसके सारे मैच बॉक्स क्या हो गए हैं, गटर में, सीवेज में गिर गए हैं और सभी बर्बाद हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और उसके पिताजी उसको पीटेंगे अगर वह घर कुछ पैसे लेकर नहीं गई। एंड सी इज क्राइंग, और वह रो रही है। सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और यहाँ पर वह कह रहा है, हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि उसके पास शूज भी नहीं है, स्टॉकिंग भी नहीं है, और उसके सर भी क्या है, वो खाली हैं, क्योंकि बर्फ का समय है और इसके सर खाली हैं तो ठंड ज़्यादा लग रही होगी। मेरी दूसरी आंखें, मेरी जो अदर आई है, उसे भी तुम रिमूव कर दो और उसे जाकर दे दो। और उसके पिताजी उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वैलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। और यहाँ पर स्वैलो कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और स्टे कर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंखें प्लक आउट, रिमूव नहीं कर सकता, तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और फिर से प्रिंस कहता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेज अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट। और अब क्या किया, जैसा ऑर्डर मिला था, फिर से स्वैलो ने प्रिंस की दूसरी आंखें रिमूव कर ली। और डार्टेड का अर्थ क्या होता है, मूव समवेयर सडनली, और निकालने के बाद बहुत तेजी में वहां से चली गई। ही सूप पास्ट द मैच गर्ल एंड स्लिप द जेवल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। वॉट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल, एंड सी रेन होम लाफिंग। सूप्ड का अर्थ क्या होता है, वेरी लो हाइट पे उड़ना। और यहाँ पर चिड़िया क्या कर रहा है, बहुत नीचे हाइट पर उड़ रहा है, और वह लड़की के हाथ में ज्वेल को, में सफायर्स को रख देता है। और लड़की चिल्लाती है, कहती है कितना प्यारा सा ग्लास है, और वह घर की ओर हंसते हुए भागती है। देन द स्वैलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। और यहाँ पर स्वैलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है, कहता है तुम अब अंधे हो चुके हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नो लिटिल स्वैलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। और यहाँ पर प्रिंस कहता है, नहीं लिटिल स्वैलो, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना चाहिए। नो, आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, सेड द स्वैलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और स्वैलो मना करता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, और वह प्रिंसेस के पैर के पास सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस सोल्जर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और अब से हमेशा अगले दिन क्या करते रहता है, वह प्रिंस के सोल्जर पर बैठ जाता है और उसे कहानियां बताते रहता है, जो कुछ भी वह उस लैंड पर, उस अजीब से लैंड पर देखता है। डियर लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. यहाँ पर प्रिंस कह रहा है, डियर लिटिल स्वैलो, तुम मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ें हैं लोगों के
सफरिंग के बारे में जानना। क्योंकि मिजरी का अर्थ क्या होता है? सैड। क्योंकि उदासी से बड़ा कोई भी रहस्य नहीं होता है। मेरे शहर के ऊपर उड़ो और जो कुछ तुम देखते हो मुझे बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. और swallow क्या करता है? उस बड़े से शहर के ऊपर उड़ता है और देखता है अमीर लोग अपने खूबसूरत घर में एंजॉय कर रहे हैं, जबकि बेगर्स क्या हैं? गेट के पास बैठे हुए थे। He flew into dark lanes. वह अंधेरी गलियों में उड़ता है and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Starving का अर्थ होता है वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा। और वह उस अंधेरी गलियों में देखता है कि बच्चे लोग भूख से जिनका चेहरा वाइट हो गया, वो उस अंधेरी गलियों में राह देख रहे हैं, मानो जैसे कोई आए और उन्हें खाने को दे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arm to try and keep themselves warm. आर्कवे कहा जाता है जो ब्रिज के ऊपर में आपने देखा होगा, आर्कवे बना होता है, दोनों किनारे रहते हैं, किसी नदी के ऊपर में या ओवर ब्रिज वगैरह होते हैं, तो इसके नीचे भी लोग रहते हैं। तो उस आर्कवे के नीचे, उस ब्रिज के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे के बाहों में बाँह डाल के, हाथों में हाथ डाल के वहां पर बैठे हुए थे और वे दोनों एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड। और वे लोग कहते हैं हम लोग कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन। और तभी वॉचमैन आता है, वो उन पर चिल्लाता है तुम यहां नहीं लेट सकते हो। और वे लोग बारिश में बाहर इधर उधर अब भटकना स्टार्ट कर दिए। Then he flew back and told the prince what he had seen. और तब यहाँ पर स्वैलो वापस जाता है और जो कुछ इसने देखा है वह प्रिंस को बताता है। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. और यहाँ हैप्पी प्रिंस कहता है मैं पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड हूँ, ढका हुआ हूँ, तुम इसे लीफ बाय लीफ ले जाओ और गरीबों को दे दो। क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, मीन्स ह्यूमन होते हैं, वे सोचते हैं, उनका मानना है कि सोना गोल्ड उन्हें खुश रख सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और यहां पर स्वैलो क्या कर रहा था? लीफ आफ्टर लीफ इस सोने की परत को रिमूव कर रहा था और इसके कारण हैप्पी प्रिंस जो है अब वो डल और ग्रे लगने लगा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्राउड टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। और लीफ आफ्टर लीफ वह सोना गरीबों को दिया जा रहा था और जिसके कारण क्या हो रहा था? बच्चों के चेहरे चमक रहे थे और वे लोग अब हंस रहे थे, स्ट्रीट में खेल रहे थे और वे लोग अब चिल्ला रहे थे हम लोगों के पास अब ब्रेड है। मीन्स नाउ दे ऑल आर वेरी हैप्पी। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। और यहाँ पर स्नो आ गया और जैसे ही स्नो आया अब यह क्या हुआ? सारा जम गया और स्ट्रीट अब कैसे लग रहे हैं? मानो जैसे वो सिल्वर के हों। और हर लोग अब फर्श के कपड़े पहने हुए हैं और सबकी टोपी जो वो रेड कलर की है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं? सब कोई आइस पर स्केटरिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। अब यह जो छोटी सी स्वैलो है वह और ज़्यादा ठंड महसूस कर रही थी, लेकिन वह प्रिंस को छोड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि वह प्रिंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. Crumbs क्या होता है? A very small dry piece of bread. और यहाँ पर स्वैलो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो बेकर्स के डोर के पास जाता था और वहाँ से
क्रम्स पीस ऑफ ब्रेड को लेता था, खाता था, जब बेकर उसको नहीं देख रहा होता था और खुद को विंग्स को फ्लैप करके फड़फड़ा के वो खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस सोल्जर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। और अब उसे भी पता चल जाता है कि अब वो मरने जा रहा है और अब उसमें अब इतनी ही ताकत बची है कि वो प्रिंस के सोल्जर पर एक बार उड़ सके, जा सके। और वो प्रिंस को कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। और वह कहता है क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकता हूं? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। And this one is an emotional attachment in between Happy Prince and Swallow. और यहाँ पर प्रिंस कहता है कि अब फाइनली मुझे अब खुशी हुई कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, तुम यहाँ बहुत दिन रुक गए हो, तुम मेरे होंठ को किस करो क्योंकि मैं भी तुमको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। मीन्स दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। प्रिंस को नहीं पता कि स्वैलो अब मरने वाला है। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। अब यहां पर स्वैलो कहता है वह इजिप्ट नहीं जा रहा है, मैं मौत के घर जा रहा हूं। डेथ क्या है? स्लीप का भाई है, नींद का भाई है। क्या वह नहीं है? क्योंकि स्लीप में, नींद में हम लोग थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बट इन डेथ वी आर स्लीपिंग फॉर परमानेंटली। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और वह हैप्पी प्रिंस के लिप्स को किस करता है और उसके पैरों के पास आकर मरा हुआ गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. The fact is that the little heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. और ठीक उसी वक्त, उसी क्षण, एक अजीबो-गरीब एक क्रैक साउंड स्टैचू के भीतर से आया, मानो जैसे कुछ टूटा हुआ हो। और वास्तविकता यह थी कि उसके अंदर जो शीशे का दिल था वह दो हिस्सों में टूट गया था। कहा जाता है कि यह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण टूट गया था, बट इन रियलिटी ड्यू टू द डेथ ऑफ बिलव्ड वन ही वॉज और हिज हार्ट वॉज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। और अगली सुबह मेयर स्क्वायर बिलो में अपने कंपनी में उसके अपने टाउन काउंसलर सबके साथ वहाँ घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। और जब वह कॉलम के पास से गुजर रहा था तो उसने स्टैचू देखा प्रिंस का। डियर मी, हाउ सैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। सैबी मीन्स खराब, अनटाइडी। और उसने क्या कहा कि दिखने में ये प्रिंस का जो स्टैचू है वो कितना खराब लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है। हाउ सैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स who always agreed with the mayor and they went up to look at it. और टाउन काउंसलर भी कहते हैं हाँ बहुत भद्दा लग रहा है, क्योंकि ये जो टाउन काउंसलर हैं वो हमेशा मेयर की जी हजूरी मीन्स हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वे लोग ऊपर देखते हैं। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर। और मेयर कहता है कि इसके तलवार से रूबी भी गायब है, रूबी नहीं है, इसके आइज भी नहीं है और यह अब पहले की तरह गोल्ड भी नहीं है इसके ऊपर में। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। और वास्तविकता क्या है, यह एक भिखारी की तरह लग रहा है, या कहा जा सकता है यह एक भिखारी से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। एंड हियर टाउन काउंसलर्स रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ मेयर। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation
that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of suggestion. और यहाँ पे क्या हुआ, मेयर ने अपनी बातों को कंटिन्यू किया. उसने क्या दे पाया कि स्टैचू के फिट के पास एक चिड़िया मरी हुई थी, और उसने क्या कहा, प्रोक्लेमेशन का अर्थ होता है ऑर्डर निकालना. और उसने कहा कि हम लोगों को इसके लिए एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि चिड़ियों को यहाँ आकर मरना अलाउ नहीं है. और टाउन क्लर्क ने क्या किया, एक सजेशन के रूप में इसे अपने डायरी में नोट कर लिया. अब आप सोच सकते हैं कि मेयर कितना सोच सकता है कि वो अब चिड़ियों के लिए भी ऑर्डर निकाल सकता है. So they pulled down the statue of the Happy Prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. और यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने क्या कहा कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा देना चाहिए, क्योंकि अब यह ना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत रह गया है, ना ही अब यह यूजफुल है. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. ओवरसीयर किसे कहा गया है, सुपरवाइजर को. फाउंड्री इज अ प्लेस वेयर फर्नेस हैज बीन केप्ट प्लेस, जहां फर्नेस को रखा जाता है. और फर्नेस क्या हुआ, एक ऐसा जगह जहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. अब स्टैचू को क्या किया गया, फर्नेस में डाल दिया गया जिससे कि वो पिघल जाए. वहां का जो सुपरवाइजर था फाउंड्री का, वह क्या देखता है, कुछ अजीबो गरीब चीज़ देखता है. यह क्या अजीबो गरीब चीज़ है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. और वह टूटा हुआ जो दिल था वह फर्नेस में पिघल नहीं रहा है. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हम लोगों को इसको फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हिप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग. हिप मीन्स टू पुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग. अब वहां पे क्या किया गया है, यहां पर प्रिंस के हार्ट को भी उसी जगह फेंक दिया गया जहां पर, उसी कचरे में फेंका गया जहां पर स्वेलो भी को भी फेंका गया था. मीन्स अब आपको पता चल गया होगा कि दोनों लवर मरने के बाद भी एक ही जगह फिर से मिल गए हैं. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. अब यहाँ पर ऊपर वाले ने अपने एक एंजल से कहा कि मुझे शहर के दो प्रीशियस, दो अनमोल चीज़ें ला कर दो. और एंजल ने उनको क्या ला कर दिया, शीशे का दिल और मरा हुआ पक्षी. एंड दिस वन इज अ सिंबल ऑफ लव, पावर ऑफ लव, अफेक्शन. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. और यहाँ ऊपर वाले कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चूज किया है, और मेरे पैराडाइज के गार्डन में यह छोटी चिड़िया हमेशा गाना गाएगी, और मेरे गोल्ड के इस पैलेस में, मेरे शहर में हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा, प्रेज करेगा. सो एट द एंड वी कैन से दिस वन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए गुड हार्ट, अ प्योर गोल्ड, वेयर बोथ ऑफ देम हैव एन अफेक्शन टुवर्ड्स द अदर. ओके, सो एट द एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe this channel. Okay, thanks a lot.